أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 501 سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 95 اور 96، 95 اور 96۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا تم مت مارو الصید شکار کو، وانتم جبکہ تم حرم احرام میں ہو، ومن اور جو کوئی قتلہ اس کو مارے گا، منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤن تو بدلہ ہے اس پر، مثل ما اس کے برابر جو قتل اس نے قتل کیا، من النعم چوپاؤں سے، یحکم فیصلہ کریں گے بھی اس کا، ذوی عدل دو انصاف والے، منکم تم میں سے، ہدین بطور قربانی کے، بالغ الکعبہ کعبے تک پہنچنے والی، او یا کفارتن کفارہ ہے، طعام مساکین چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، او یا عدل ذالک اس کے برابر صیامن روزے رکھنے ہیں، لیذوقا تاکہ وہ چکھے، وبال امری اپنے کام کی سزا، عفا اللہ معاف کر دیا ہے اللہ نے، اما اس سے جو سلف گزر چکا، اور ومن اور جو کوئی عادہ پھر کرے، فینتقم تو انتقام لے گا، اللہ منہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز خوب غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا۔ احل لکم تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، صید البحر سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم فائدے کے لیے تمہارے، وللسیارہ اور مسافروں کے، وحرم اور حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البر خشکی کا شکار، ما تم جب کہ تم ہو حرمن احرام میں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ ذات کے الیہ اس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے، مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے یا کفارہ دے، اور وہ اور مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنے ہیں تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔
बुजुर्गान मोहतरम, इन दो आयतों में 11 बातें बताई गई हैं। पहली बात, ए ईमान वालों, जब तुम एहराम की हालत में हो तो किसी शिकार को कत्ल न करो। दूसरी बात, अगर तुम में से कोई जानबूझकर उसे कत्ल कर दे तो उसका बदला देना वाजिब होगा। तीसरी बात, जो जानवर उसने कत्ल किया है उस जानवर के बराबर चौपायों में से किसी जानवर को काबा पहुंचाकर कुर्बान किया जाए, या उसकी कीमत का कफारा मिस्किनों को खाना खिलाकर अदा किया जाए, या उसके बराबर रोजे रखे जाए। चौथी बात, इस सिलसिले में फैसला तुम में से 2 दियानतदार तजुर्बेकार आदमी करेंगे। पांचवी बात, इस बदले और कफारा उस लिए रहेगा कि वो शख्स अपने किए का बदला चके। छठवीं बात, पहले जो कुछ हो चुका अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। सातवीं बात, जो शख्स दोबारा ऐसा करेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा और अल्लाह इख्तिदार और इंतकाम का मालिक है। आठवीं बात, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है। नौवीं बात, ताकि वो तुम्हारे लिए और काफिलों के लिए फायदा उठाने का जरिया बन जाए। 10वीं बात, लेकिन जब तुम हालत एहराम में हो तो तुम पर खुश्की का शिकार हराम कर दिया गया है। 11वीं बात, अल्लाह से डरते रहो जिसकी तरफ तुम सबको जमा करके ले जाया जाएगा। एहराम की हालत में जो चीजें मना हैं उनमें शिकार है। जो शख्स एहराम की नियत करे, चाहे वो एहराम उम्रे का हो या हज का, दोनों सूरतों में उस पर खुश्की का जानवर शिकार करना हराम। अगर कोई शख्स एहराम की हालत में जानबूझकर खुश्की का कोई जानवर शिकार कर ले, चाहे उस जानवर का गोश्त वो खाए या ना खाए, हर हालत में उसकी सजा क्या है, इस आयत में उसकी तफसील बयान की गई है। अरबी ज़बान में शिकार को सैद कहा जाता है और सैद का ये लफ्ज़ उन जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वहशी हों, यानी ऐसे जानवर जो इंसानों से मानूस नहीं रहते बल्कि इंसानों को देखकर दूर भागते हैं, जैसे शेर है, गीदड़ है, हिरन है, खरगोश है, नीलगाय है, कबूतर है, फाख्ता है, वगैरह वगैरह। और ऐसे जानवर जो इंसानों से मानूस हैं और इन इंसानों के आसपास ही रहते हैं, ये शिकार में दाखिल नहीं है, जैसे गाय, ऊंट, भेड़, बकरी, मुर्गी वगैरह। हाँ, बाज वहशी जानवरों का एहराम की हालत में मारना भी जायज है। इनमें कौवा, चील, भेड़िया, सांप, बिच्छू वगैरह है। और ऐसे जानवर का कत्ल करना भी एहराम की हालत में जायज है जो जानवर एहराम की हालत में मौजूद आदमी पर हमला कर दे। हालत एहराम में जिन जानवरों के शिकार से मना किया गया, अगर कोई शख्स एहराम की हालत में इन जानवरों को शिकार कर ले तो ऐसी सूरत में उसकी सजा ये है कि उसी तरह का एक जानवर खरीद कर हुदूद हरम में भेज दे, जिसे वहां पर ज़बाह कर दिया जाए। अगर इस तरह का जानवर न भेज सके तो उसकी कीमत मिस्कीनों को दे दे या इसके बदले में रोजे रखे। इस आयत में इस मसले को मिस्लुमा कतला मिनन नाम के इन अल्फाज में बयान किया गया, यानी जो जानवर कत्ल किया है इस जानवर का मिस्ल बतौर जजा की वाजिब होगा। इस सिलसिले में अइम्मा किराम का इख्तिलाफ है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जसामत में इतना बड़ा जानवर हो जितना बड़ा जानवर हालत एहराम में शिकार किया गया हो, और जिस जानवर के बराबर जसामत वाला जानवर ना हो तो उसकी कीमत लगा दी जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक जसामत में मिसलियत का एतबार नहीं है, यानी जिस्मानियत वाली बराबरी मुराद नहीं है। उनके नजदीक उस मकतूल जानवर की कीमत लगा दी जाए, फिर इस कीमत से जानवर खरीद कर हुदूद हरम में ज़बह कर दिया जाए। अब सवाल यह कि इस जानवर की कीमत कौन तय करेगा, इसकी वजाहत इस आयत के इस जुमले में की गई, यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, कि मुसलमानों में से 2 इंसाफ वाले आदमी उस जानवर की कीमत का अंदाजा और तखमीना लगाएंगे, और यह तखमीना उस जगह के एतबार से होगा जहां वो जानवर कत्ल किया गया है। यहाँ ये बात की ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर हालत एहराम में भूल कर या गलती से किसी शिकार को कत्ल कर दे, जमहूर का मजहब यही है कि इसमें भी जजा है। बाज़ हज़रात ने ये कहा है कि भूल कर या गलती से जो शिकार का कत्ल हो जाए तो उस पर जजा वाजिब नहीं है। इस सिलसिले में जिन हजरात को जुज़ई मसाइल मालूम करना हो वो मकामी मुफ्तियान किराम से और उलमाए शरिया मतीन से रब्त करें। यूँ तो इन दिनों में जबकि हरम के उस इलाके के अंदर शिकार का करना जाहिर बात है कि वो सूरत पेश बहुत कम आती है और कोई करता भी नहीं है उम्मूमन, लेकिन अगर हो जाए ऐसा कोई मामला तो ऐसी सूरत में ये मसाइल हैं जिनको बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।